صاحب میں نے اور آپ نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، انہوں نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جوانوں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو، ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہے، میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تو رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ زمانے نے بلال حبشی کو مدینے کی گلیوں میں چیخے مارتے ہوئے دیکھا۔ سیدہ فاطمہ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا نہیں یوں نہ کہو، تو کہنے لگے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا وکیل بمانا نگہبان یہ تو حضور کے اسماء میں سے ہے، لیکن یہاں مقدمے کی بات چل رہی ہے، یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے، اور حضور اس معنی میں ہمارے وکیل یہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، جرم ثابت ہو تو سزا ہوتی ہے۔ وکیل کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ فما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ کیا منظر نامے ہوں گے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق کا خیال ہے سب سے امید افزا قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم کہتے ہیں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے۔ فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں۔ حدیث پاک میں گھر میں بکری کا ہونا محتاجی یعنی تنگ دستی کے 70 دروازے یعنی 70 ڈورز بند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मोहम्मद नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। दुनिया में जो भी नेमत मिलती है आखिरत की 70 नेमतों को लेस करके मिलती है। हम दुनिया की नेमतें, दौलतें, आसाइशें पाकर मस्त हुए पड़े हैं। आखिरत की फिक्र नहीं है कि ये जितनी दौलत ज्यादा, जितनी आसाइश ज्यादा दुनिया में मिल रही है, वो आखिरत में हमारी लेस हो रही है, कम हो रही है। इह्या उल उलूम में लिखा हुआ है कि खाना खाए तो खाने के बाद रोए अल्लाह के खौफ से। अल्लाह करीम दुनियावी नेमतों की कमी पर गिला शिकवा करने के बजाय सब्र और शुक्र की कैफियत अता फरमाए। दावा कर बैठे हैं कि भाई बंदियां को नहीं मंगना, उन्हें को मंगना है। तो आपको पता है अल्लाह की इतनी रहमत है, अगर हम बंदों से मांगने निकलें तो मैं सियालकोट की सब तो बड़ी मस्जिद बनावा, लेकिन बंदों से मांगना बंदे से हक बात कहने की जरूरत छीन लेता है। इतने लेकर आओ जितने रेत के जर्रे हैं माफ कर दूंगा, इतने लेकर आओ जितने दरख्तों के पत्ते हैं माफ कर दो। तो एक तवाइफ के पास इतने गुनाह तो नहीं है कि वो बारिश के कतरों से ज्यादा हो जाएं, या रेत के जर्रों से बढ़ जाएं, या दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं, लेकिन नफरत 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 इंसान ही नहीं समझता। अंगूर हैं, आपने कहा हैं, वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? तो आपने कहा एक कौवा एक महीना सीधा उड़ता 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 जहां पहुंचेगा उतना बड़ा जन्नत के अंगूर का एक गुच्छा होगा। तो खाली तुम्हारे पनामा से बड़ा तो अंगूर का गुच्छा होगा। एक महीना कौवा उड़ता रहे तो 1000 किलोमीटर तो वो तय कर जाएगा, जो कौवे की रफ्तार बड़ी तेज होती है। तो तुम्हारे पनामा से बड़ा तो एक अंगूर का गुच्छा मेरे रब ने बनाया है। वो फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह, तो एक दाना कितना बड़ा होगा? तो आपने कहा तेरे अब्बा ने कभी बड़ा छतरा, भेड़ का जो नर होता उसको छतरा कहते हैं, बड़ा छतरा ज़बा करके खाल उतार के उसका डोल बनाया। तेरी अम्मा से कहा इसका डोल बनाओ, ने कहा हाँ। तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा जैसे मेरा हाथ खुला है इतना, क्योंकि जो नर होता है भेड़ का बड़ा लंबा, उस लंबाई में ज्यादा होता है। तो वो कहने का हाँ जी कई दफा बनाया है। तो आपने कहा जितना बड़ा वो डोल है इतना बड़ा एक दाना होगा। तो वो अपने सादगी में कहने का या रसूल अल्लाह, फिर मुझे और मेरी बीवी को तो एक दाना ही काफी हो जाएगा। आपने कहा तेरे सारे घर को काफी हो जाएगा। एक बद्दू ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत में खजूर है? आपने कहा है। कैसी है? कि एक दाना 12 हाथ लंबा होगा। ये हाथ 25 इंच का एक हाथ होता है, शरान तो 2 फुट 1 इंच, तो 12 दूने 24 फुट सिर्फ खजूर का दरख्त नहीं, खजूर का दाना 24 फुट। तुम 5 फुट के कैसे खाओगे उसे? तो अल्लाह तुम्हें 130 फुट बनाएगा आदम अलैहिस्सलाम के कद पर। हर मर्द औरत का कद 130 फुट होगा। एक बद्दू ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हाँ, सुर्ख याकूत के, सब्ज ज़ुमर्रुद के पर हैं, तुम बैठोगे तुम्हें लेके उड़ेंगे, जहां नजर वहां कदम। दूसरा कहने लगा या रसूल अल्लाह जन्नत में ऊंट हैं? उनकी बड़ी पसंदीदा चीज थी कि जी। आपने कहा हाँ ऊंट भी हैं, सब्ज ज़ुमर्रुद के पर हैं उनके, जिधर तेरी नजर उधर उसका कदम। एक ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत में सहरा भी है? अरब तो सहरा का आशिक है, सहरा में वो रहते हैं, तो सहरा के वो आशिक हैं। तो आपने कहा हाँ सहरा है, लेकिन रेत का नहीं है, मुश्क और अंबर का सहरा है। मेरे हुजूर ने 3 चीजें कसम करके कही, अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूँ। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि सदके से माल कम नहीं होता। ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आब खोरे में पानी ले रही थी कि हुजूर घर तशरीफ लाए। मुझे दूर से कहा आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। तो मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया, पानी पीने लगे तो फिर रुक गए और फिर मुझे मुखातबा करते हुए कहा
आयशा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे, मैं वहां होंठ रख के पानी पीना चाहता हूं। मुझे बताओ अगर हुजूर की ये सुन्नत हम इख्तियार कर लें तो घर जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू उस्मान सफर पे जा रहे थे, पतझड़ का मौसम था। एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो गए थे। हजरत सलमान फारसी ने शाख पकड़ी और झटका दिया, सारे पत्ते गिर गए। तो कहा अबू उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि ये मैंने क्यों किया है। हजरत अबू उस्मान ने कहा मैंने नहीं पूछा, आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया है। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ था, सफर पे था, ऐसे ही एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो चुके थे। हुजूर ने शाख पकड़ी, जुम्बश दी, झटका दिया, पत्ते गिर गए। हुजूर ने मुझे देखा और कहा ए सलमान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा बंदा नवाज आप बता दें आपने ऐसा क्यों फरमाया। फरमाया सलमान जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बश दी और इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहा, सारे गिर गए। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है बदन के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि बड़ी परेशानी है, तो मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो। तो उसने कहा मैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने कहा कि आपके घर के सामने गली कितनी चौड़ी है। तो वो कहने लगा 12 फुट की गली है। तो मैंने कहा कि आपने जो थड़ा बनाया है वो कितना आपने बनाया। कहता 3 सीढ़ियां। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं है, 12 फुट की गली है, लोगों की बेचारों की कभी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जनाजे भी गुजरते हैं, और तुमने 3 सीढ़ियां उस गली के अंदर रखी हुई हैं और तुम समझते हो कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तुम लम्हा लम्हा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते हो। लम्हा लम्हा मैं